experiment. Basically, we will discuss about electrons, how electrons were discovered, and what are the properties of electrons. So we'll discuss in today's lecture cathode ray experiment. So let us start the topic, that is cathode ray experiment. Let us start the topic, that is cathode ray experiment. So today's topic is cathode ray experiment or discovery of electrons. Discovery of electrons. This is our today's topic. We are going to start. तो बेसिकली एटम की स्ट्रक्चर हम पहले से जानेंगे. तो बेसिकली हमारे पास पहले जो था दैट इज जॉन डाल्टन. अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, he was the first who put forward atomic theory. According to John Dalton, atom consists of small particles. Atom is the smallest particle of matter. So according to this theory, atom is the smallest particle of matter. Smallest particle of matter. Later on, what happened? हमारे पास माइकल फैराडे आ गया. माइकल फैराडे. माइकल फैराडे ने एक रिलेशनशिप, he showed a relationship between matter and electricity. If I showed a relationship, so this is again important. फैराडे ने क्या काम किया? He showed a relationship. He showed a relationship between matter and electricity. Matter and electricity. So basically, this was the main thing that led to the discovery of subatomic particles. तो इसकी वजह से हमारे पास यह है कि atom is not the smallest particle. Because of this discovery, because of this relationship, we found that atom is not the smallest particle. So inside the atom there are present other fundamental particles. Atom के अंदर और भी fundamental particles हैं जो present होते हैं. Then discovery started. Then more detailed structure of the atom started. That detailed structure includes discovery of cathode rays. तो यहाँ पे हमें concept आया cathode rays की discovery, anode rays की discovery. उसके बाद हमारे पास आया एक्स-रे डिस्कवरी. उसके बाद हमारे पास आया रेडियो एक्टिविटी. उसके बाद हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट आया. रेडियो एक्टिविटी. एंड उसके बाद हमारे पास आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. And later on quarks and new atoms. And later on quarks and new atoms. So इन डिस्कवरीज की मदद से हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए. तो इनमें से हम पहली डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे, दैट इज डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे. तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज कहाँ से स्टार्ट हुई? इट वाज फर्स्ट जूलियस प्लैकर. इट वाज जूलियस प्लैकर who carried out discharge tube experiments or cathode ray tube experiment, CTR, cathode ray tube experiment. These are called discharge tube experiments. Discharge tube experiments. So यहाँ से इस discovery of cathode ray से हमारे बहुत सारे questions बनते हैं. Discharge tube experiments. So James Placer was the first. Julius Placer was the first who carried out discharge tube experiment. So what is the discharge tube experiment? Now you can see over here, this is a discharge tube. ये हमारे पास एक discharge tube है. तो इसमें हमने गैस भरा है कोई at a very very low pressure. The gas is filled in this discharge tube at a very very low pressure. तो प्रेशर क्यों लो रखते हैं उसका भी एक लॉजिक है. यहाँ से हमने वैक्यूम पंप लगाया है. You can see over here there is present a vacuum pump. And over here हमने वोल्टेज अप्लाई की है. This is a voltage of 10,000 volts or above. 10,000 volts. Now there is a reason why इतनी ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत हमें पड़ी. तो इतनी ज़्यादा वोल्टेज क्यों जरूरत पड़ी इसका भी एक रीजन है. वो मैं रीजन अभी डिस्कस करूंगा आपसे. तो ये जो मेरा डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें हमारे पास यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर दिस इज अ कैथोड. यहाँ पे हमारा कैथोड है और यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास एनोड है. दिस इज एनोड. तो यहाँ पे हमारा कैथोड मेटल डेसिक है. दिस इज अ मेटल डेसिक. एंड यहाँ पे एनोड मेटल डेसिक है.
यहाँ पे हमारा वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप से हम जो एक्सेस प्रेशर है यहाँ पे उसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस एट लो प्रेशर रखा है इनसाइड दिस डिस्चार्ज ट्यूब, इनसाइड दिस डिस्चार्ज ट्यूब। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स कोटेड विद अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इट्स कोटेड विद अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन। दिस फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज either phosphor screen or it's your zinc sulfide screen. It's your zinc sulfide screen. Zinc sulfide screen is basically your fluorescent screen. Fluorescent screen is one which glows. So what was found? जब हमने इतनी ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई की, so it was found a sort of invisible rays come from this cathode and they move towards anode. Some sort of invisible rays come from this cathode and they move towards anode. Now if they are invisible, अगर ये rays invisible है तो हमने इनको कैसे देखा? Because हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन यहाँ पे लगाई, तो ये जो ट्यूब है हमारा दिस ग्लोज, ये ग्लो करने लगा। बिकॉज ऑफ दैट हमें पता चला कि यहाँ से कुछ रेज आती है। दीज रेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो इन रेज को इन रेज का नाम दिया गया है, दीज आर कैथोड रेज। अब देखते हैं इन रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, बिकॉज प्रॉपर्टीज से आपको क्वेश्चन आएगा। सो लेट अस सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कैथोड रेज। तो प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज से आपको क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। दीज कैथोड रेज दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स। कैथोड रेज CTR cathode rays travel in straight lines. They travel in straight lines. So this is the first property, बहुत ही important है, याद रखनी है आपको। They travel in straight lines with a speed of, इनकी speed भी आपको याद रखनी है, 10 raised to power 9 to 10 raised to power 11 with a speed of, तो इनकी speed क्या थी? They travel with a speed of 10 raised to power 9 to 10 raised to power 11, 10 raised to power 9 to 10 raised to power 11 meter per second. This was the speed of these cathode rays. So this is first important point. Cathode rays travel in straight lines and their speed lies in this range, 10 raised to power 9 to 10 raised to power 11. This is first point. तो हमने कैसे conclude किया कि these rays travel in straight line? Sorry. How we concluded that these rays travel in straight lines? तो कोई भी object अगर high speed से मूव करता है इन ए स्ट्रेट लाइन, तो अगर हम उसके आगे कोई और ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इट कास्ट शेडो, इट कास्ट शेडो, बिकॉज दीज रेज कास्ट द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर प्लेस्ड इन देयर पाथ। दैट्स व्हाई वी कंक्लूडेड दैट दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। नाउ लेट अस डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड इज दे कॉज फ्लोरेसेंस। दे कॉज फ्लोरेसेंस। They cause fluorescence on zinc sulfide screen. They cause fluorescence on zinc sulfide screen. What was the color of this glow? What was the color of this fluorescence? This was greenish color. Greenish color. They glow with greenish color. Greenish glow हमने यहाँ पे पाया। Number third, ये जो हमारी cathode rays है, third important property. This is a very important property. These rays possess kinetic energy. These rays possess kinetic energy. तो इन रेज के पास आपकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, क्योंकि जब भी कोई मूविंग पार्टिकल हमारे पास होता है, मूविंग पार्टिकल सिंस पार्टिकल है तो इट हैज अ सर्टेन मास m। जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, इट मूव्स विद द वेलोसिटी v, एंड ऑब्जेक्ट हैविंग मास m एंड वेलोसिटी v possess द काइनेटिक एनर्जी। तो हमने इसको प्रूव कैसे किया कि दे possess काइनेटिक एनर्जी? हमने एक्चुअली इनके बीच में एक पेडल व्हील रखा यहाँ पे। तो इनके बीच में हमने एक पेडल व्हील रखा। आई विल टेक अ डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे हमने एक पेडल व्हील रखा। दिस इज अ पेडल व्हील। Since these rays move with a very high speed, they cause the blades of this pedal wheel to move. These blades of the pedal wheel, they move like that of fan. Since कोई भी मूविंग पार्टिकल अगर किसी रेस्ट पार्टिकल को मूव कराएगा, then that means कि this moving particle, ये जो हमारे पास moving particle है, it possesses kinetic energy. This concluded that these cathode rays, they possess kinetic energy. So this is very important point. So 2 points are important over here. One is important that they travel in a straight line, and the second one that's important is they possess kinetic energy. Now let us discuss property number 4. Let us discuss property number 4. So property number 4 says that they cause heating effects. These rays cause heating effects.
they cause heating effects. So how the rays cause heating effects? Now the question arises, how the rays cause heating effects? Since these rays move with a very high kinetic energy, a moving particle with a very high speed produces heat energy. So there is conversion of this kinetic energy into heat energy, interconversion of energy. That's why they cause heating effects. तो यहाँ तक हमने चार प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चार प्रॉपर्टीज है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है they cause heating effects. Now number fifth property is these rays are deflected by electric and magnetic field. They are deflected by electric and magnetic field. It is deflected by your electric field and they are deflected by your magnetic field. तो यहाँ पे अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, यहाँ पे अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, तो यहाँ पे अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेट रखा, तो यहाँ पे कोई हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा फॉर एग्जांपल, तो since these rays they are deflected towards by electric field and magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली मुझे बताओ किस पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करती है. मैग्नेटिक फील्ड किस पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करते हैं? मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दूंगा. हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं और हमारे पास चार्जेड पार्टिकल्स. मैग्नेटिक फील्ड कौन से पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करते हैं, ये मुझे बताओ. मैग्नेटिक फील्ड कौन से पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करती है? Does magnetic field deflect neutral particles or it deflects charged particles? तो ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा. मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स चार्ज्ड पार्टिकल्स. वेरी गुड. मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स चार्ज्ड पार्टिकल्स. तो यहाँ से हमें कंक्लूड हुआ कि ये जो रेज हैं दे पोजेस चार्ज. ये जो रेज हैं दे पोजेस चार्ज. दीज आर चार्ज्ड पार्टिकल्स. नाउ उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इनमें कौन सी चार्ज होगी, वेदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड. तो हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट रखा और यहाँ हमने एक नेगेटिव प्लेट रखा और उसके बाद हमने देखा कि ये जो रेज हैं दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. दैट मींस दीज रेज कैरी नेगेटिव चार्ज. नेगेटिवली चार्ज्ड particles will be deflected towards the positive plate. Means these rays are negatively charged particles. That means these rays are negatively charged particles. So these rays are negatively charged particles. This is our point number 6. These rays are negatively charged particles. They are negatively charged particles. Since they are negatively charged particles, they were named as negatrons. They were named as negatrons. So this name negatron, it was given by Thomson. J.J. Thomson gave them the name negatron. Later on, this name was changed to electron by Stone. This was changed to electron by Stone. The name negatron was changed to electron by Stone. So this was our property number 6. Now let us discuss property number 7. So whenever these cathode rays, जब ये जो हमारे पास cathode rays है, ये जो हमारे पास कैथोड रेज है, whenever they strike a material particle, a matter of very high atomic mass. मानो ये कोई हमारे पास मैटर है, इसका एटॉमिक मास हाई है, इसका एटॉमिक मास हाई है. They produce a different type of rays. तो यहाँ से एक नई किस्म की रेज निकल के आती है, and these rays were called X-rays. So this is a very important point. Cathode rays produce X-rays. Now, when cathode rays produce X-rays, when they strike a matter of very high atomic mass, तो क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास चार कंपाउंड एलिमेंट्स देंगे वो जिनका मास होगा. फॉर एग्जांपल एक का मास 1 होगा, दूसरे का मास 5 होगा, तीसरे का मास 91 होगा एंड लास्ट वन का मास फॉर एग्जांपल 8 होगा. तो आपको बोलेगा कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स-रेज बाय स्ट्राइकिंग विद पार्टिकल फर्स्ट, पार्टिकल सेकंड, पार्टिकल थर्ड, पार्टिकल फोर्थ. नाउ टेल मी द आंसर. मुझे इसका आंसर बताओ. वेरी हाई एटॉमिक मास से जब ये स्ट्राइक करेंगे देन दे प्रोड्यूस एक्स-रेज. So that's 91. कहाँ 4 यार? हाँ, this one, fourth one, very good. हाँ, this fourth one, 91. Very good, very good. तो जब भी कोई हाई एटॉमिक मास मैटर आपके पास होगा, अगर कैथोड रेज उस पे आप लगाओगे, they will produce X-rays. So they produce X-ray. Clear? Now the most important point is nature of these rays.
नेचर ऑफ कैथोड रेज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको हॉट मार्क करो, इसको स्टार मार्क करो, कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेचर ऑफ कैथोड रेज किस चीज पे डिपेंड करती है? नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज they do not depend upon the nature of the cathode. They are independent upon the nature of cathode. They are independent upon the nature of cathode. Independent upon nature of cathode. तो कोई भी कैथोड आप ले लो, किसी भी मेटल का आप कैथोड बनाओ, कोई भी कैथोड आप ले लो, तो कैथोड रेज will not depend upon that. Cathode rays will always be emitted from the cathode. Number second, they do not depend upon the gas present in the discharge tube. They are independent upon the gas. They are independent upon the gas, nature of gas present in the discharge tube. So I may write it, nature of gas present in discharge tube. Present in discharge tube. तो जो कोई भी गैस आपके डिस्चार्ज ट्यूब में होगा उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। These are two important points. These are two important points. Cathode rays does not depend upon the nature of the cathode. They do not depend upon the nature of the gas present in the discharge tube. बहुत ही important हैं ये दो points. तो यहाँ तक अगर हम एक दो क्वेश्चन फ्रेम आउट करेंगे, यहाँ तक अगर हम एक दो क्वेश्चन, आई होप आपने इसको कॉपी किया होगा। So this is very important. Cathode rays it does not depend upon the nature of the cathode. They do not depend upon the nature of the gas. They do not depend upon the nature of the gas. Very good. They do not depend upon the nature of the gas. तो यहाँ तक अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ से लेंगे from the property that is not associated, the property that is not associated with cathode rays, that is not associated with cathode rays, CTR, cathode rays. The number first property is they travel in straight lines with very low speed. With very low speed. More than one answers can be correct over here. Number second is they cause heating effects. They cause heating effects. And number third is they produce X-rays. They produce X-rays. And number fourth is they depend upon the nature of, they depend upon the nature of they depend upon the nature of कैथोड। तो मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर, अगर यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बढ़िया। जिस किसी ने भी आंसर दिया बहुत ही बढ़िया, बाकी बच्चे भी आंसर दे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो वी नो दैट दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बट दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ पे लो लिखा है, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। Number second, they are independent upon the nature of the cathode. It is written over here, they depend upon the nature of the cathode. So your option is option number 1 and 4th, they are the correct option. Option number 1 and 4th, they are the correct. Option number 1 is also correct. Option number 1 is also correct because this property is not associated. They travel in straight lines, but with a very high speed, 10 raised to power 9 to 10 raised to power 11. Isn't it? Isn't it clear? तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। इस चीज को हम आगे ले जाएंगे। Will determine the charge of an electron, will determine the mass of an electron and mass with respect to hydrogen. Sorry, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो हम जे थॉमसन जो था, he was awarded Nobel Prize for determining E by m, that is specific charge on an electron. जे थॉमसन determined E by m of an electron. J.J. Thomson determined E by m of an electron. So according to J.J. Thomson, this E by m comes out to be, minus 1.7588
into 10 raised to power 8 coulomb per gram. Since charge का unit coulomb है, that's why coulomb, mass का unit gram है, that's why the unit is coulomb per gram. So this is the value of E by M. ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से. E by M of an electron is equal to, ये क्वेश्चन पूछा गया है. This has been asked once. So this is the E by M of an electron. इसी को कहते हैं specific charge या charge by mass ratio of an electron. It was determined by J.J. Thomson and he was awarded Nobel Prize for this. And the value was found out to be 1.7588 into 10 raised to power 8. तो यूनिट क्या बनता है? कूलम पर किलोग्राम, सॉरी कूलम पर ग्राम. तो यहाँ से अगर सेम वैल्यू देगा, यूनिट्स को चेंज करेगा तब आपको फंसाएगा. तो इसलिए यूनिट भी आपको याद रखना है. कभी एग्जामिनर ट्रिकी बनता है, वैल्यूज यही देगा 2-3 ऑप्शन में, -1.7588 into 10 raised to power 8. तो कूलम के बदले कोई जूल लिखेगा, जूल पर ग्राम. तो यहाँ पे लिखेगा आपका एम्पियर पर ग्राम, यहाँ पे लिखेगा कूलम पर किलोग्राम और यहाँ पे लिखेगा कूलम पर ग्राम. सो इट्स कूलम पर ग्राम. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? तो व्हाट इज द रिलेशन? कौन सी रिलेशन J.J. थॉमसन ने यूज की फॉर डिटरमाइनिंग दिस E by M ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? हाँ, SI यूनिट में किलोग्राम है, बट दिस वैल्यू वाज फाउंड इन ग्राम. तो अगर हम SI यूनिट यूज करेंगे तब जाके इसका वैल्यू डिफरेंट आएगा ना, तब जाके इसका वैल्यू डिफरेंट आएगा. कूलम पर ग्राम. So this value was found in grams. Coulomb per gram. It's not all about यहाँ पे SI unit, यहाँ पे SI unit. It was found, this E by M was found in coulomb per gram. तो क्यों लाया गया है इसको, अभी हम इसकी डिटेल्स भी जानेंगे. अभी इसकी डिटेल्स भी जानेंगे जब हम मास को यहाँ से निकालेंगे. तब मास का यूनिट यहाँ पे ग्राम्स में इसने इंट्रोड्यूस किया होगा अपने एक्सपेरिमेंट में, तब जाके ये वैल्यू आया होगा. अगर वो मास का यूनिट किलोग्राम्स में लेता तब डिफरेंट वैल्यू आता ना, तब डिफरेंट वैल्यू आता. So the relation that was used by J.J. Thomson, कभी एग्जाम में पूछेंगे, which relation was used by J.J. Thomson for determining E by M of an electron? So E by M is equal to your electric field divided by R into B square. What is B? B is your magnetic field. So ये relation J.J. Thomson ने utilize की. फिजिक्स में आपने इस relation को डिटेल में पढ़ा होगा. ये relation J.J. Thomson ने utilize की. ये relation J.J. Thomson ने utilize. क्लियर? तो उसके बाद हमारे पास आया मिलिकन. मिलिकन इन हिज फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. तो एक्सपेरिमेंट का नाम भी यहाँ पे याद रखना है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में मिलिकन ने चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकाला. ही फाउंड द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू बी इट्स इक्वल टू -1.6022. यू कैन टेक इट -1.6 into 10 raised to power -19 coulombs. This was found to be charge on an electron. This is called a unit negative charge. This is called a unit negative charge. This is called a unit negative charge. So what is unit negative charge? It is charge on an electron. -1.6 into 10 raised to power -19. तो इसको आप approximately लिख सकते हो. It's -1.6 into 10 raised to power -19 coulombs. This is the unit of the charge. Clear? तो बेसिकली हमारे पास चार्ज का यूनिट ये आता है, कूलम भी आता है, चाहे कोई भी सिस्टम आप ले लो यहाँ पे. दैट्स व्हाई कूलम पर ग्राम ले लिया. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस. क्लियर हुआ? तो उसके बाद मिलिकन ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट वाज फाउंड टू बी द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक चार्ज. तो नाउ अब आपके पास चार्ज है, दैट्स इक्वल टू -1.6022 into 10 raised to power -19 coulombs divided by specific charge, that's E by M. This is your E by M value, that's -1.7588 into 10 raised to power 8 gram coulomb per gram. तो देखो कूलम से कूलम कैंसल, आपका ग्राम यहाँ रहेगा. तो जो मास का यूनिट है that will come out in gram. That will come out in grams. That will come out in grams. Clear? तो मास का वैल्यू जो आया इन ग्राम्स दैट 9.1096. 9.1 को अप्रोक्सीमेटली ले लो या पूरा ले लो, 9.1066 into 10 raised to power -28 grams. -28 grams.
तो नाउ अब आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो. दैट विल बी इक्वल टू 9.1 अप्रोक्सीमेटली into 10 raised to the power minus 31 किलोग्राम. क्लियर. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है, E by m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन याद रखना है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन याद रखना है. प्रॉब्लम में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे जाके. क्लियर हुआ. E by m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. क्लियर. तो यहां तक क्लियर हुआ. लेट मी नो यहां तक क्लियर हुआ. अब इसके बाद जो कहानी है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद जो कहानी है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये जो मास हमने निकाला. व्हाट इज दिस मास कॉल्ड? मुझे बोलो इस मास को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस मास कॉल्ड? व्हाट इज दिस मास कॉल्ड? इस मास को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस मास कॉल्ड? कोई मुझे बताएगा इस मास को क्या कहते हैं? तो ये जो हमारे पास मास आ गई, mass of electron, it comes out to be 9.1. It comes out to be 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilograms, or 9.1 into 10 raised to power minus 28 grams. तो मुझे पता है इस मास को क्या कहते हैं. What is this mass called? This is called a rest mass of an electron. This is called a rest mass of an electron. This is called a rest mass of an electron. Now, what do you mean by rest mass of an electron? तो किस चीज को rest mass of an electron कहते हैं? This is called a rest mass of an electron. Rest mass of an electron means when an electron is moving with a very, very low speed. Very, very low speed. When your electron is moving with a very, very low speed, then it's called a rest mass of an electron. So ये जो हमने mass निकाला यहाँ से, this is called a rest mass of an electron. क्लियर. अगर आपको मूविंग इलेक्ट्रॉन की मास निकालनी है तो हाउ टू डिटरमाइन मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन? हाउ टू डिटरमाइन मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे? मूविंग इलेक्ट्रॉन की मास आप कैसे निकालोगे? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय. अभी मैं आपको इस पे क्वेश्चन बताऊंगा. मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इट्स इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट्स इक्वल टू मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन rest mass divided by under root of 1 minus v square by c square, where your v square is velocity of electron, velocity of electron, and c square is velocity of light. It's velocity of light. तो इस इक्वेशन से आप मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो. इस इक्वेशन से आप मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो. यू कैन यूज दिस इक्वेशन एंड यू कैन डिटरमाइन मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन. तो अगर एग्जाम में आएगा रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय, तो इट इज डिटरमाइंड बाय मास इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय E बाय m. तो अगर आएगा मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय, देन इट इज डिटरमाइंड बाय दिस फार्मूला. देन दिस फार्मूला इज यूज्ड टू डिटरमाइन मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन. क्लियर. तो यहाँ पे आप कंडीशन से अप्लाई करेंगे. तो कंडीशन नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे. When an electron is moving with the velocity of the light, means when the velocity of electron is equal to the velocity of light, means when v is equal to c. This is condition number first. What do you mean by v is equal to c? इसका क्या मतलब है? ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, it is moving with the velocity of light. v is the velocity of electron, c is the velocity of light. तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है with the velocity of the light, then what will happen? Then what will happen? Tell me guys, what will happen? This will be, for example, 1, this will be 1, so this and this will cancel. So this and this will cancel, so this term will get cancelled over here. तो तब जाके आपकी जो मास होगी, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, mass of moving electron, in this case condition number first, mass of moving electron, it will be infinity. So it will be infinity. So ये question आपके एग्जाम में आ सकता है. When the mass of moving electron is infinity, yeah, in which of the following cases mass of moving electron is infinity? When your electron moves with the velocity of the light. When your electron moves with the velocity of light, then it is mass is infinity. Clear? तो के कंडीशन नंबर सेकंड हमारे पास आती है. कंडीशन नंबर सेकंड हमारे पास आएगी. What is that condition? When the velocity of the electron is greater than that of velocity of light. When the velocity of electron is greater than that of velocity of light, means when v is greater than c. तो अगर आपका v ज्यादा है, ये ज्यादा है कंपेयर टू दिस, तो ओवरऑल अगर ये ज्यादा है तो तब क्या होगा?
तब ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा. दैट मीन्स ये जो वैल्यू आएगा मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन का, इट विल बिकम इमेजिनरी. देन मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स इमेजिनरी. Mass of moving electron becomes imaginary. So these are two important things. किस कंडीशन में मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इमेजिनरी होगा, किस कंडीशन में मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी होगा, किस कंडीशन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास होगा, दैट इज दिस कंडीशन. क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? आपके मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास इन्फिनिटी कब होगा? अगर आपके पास मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैल्यू, उसकी मास का वैल्यू इमेजिनरी कब होगा? Means it cannot be, its mass cannot be defined in the condition when its velocity is greater than that of the velocity of light. क्लियर हुआ? अब मुझे सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर होगी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है. आपके मूविंग इलेक्ट्रॉन की मास कब इन्फिनिटी होगी, आपके मूविंग इलेक्ट्रॉन की मास कब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कब इमेजिनरी होगी. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब हम इलेक्ट्रॉन की मास निकालेंगे. वेरी गुड. अब हम इलेक्ट्रॉन की मास निकालेंगे, मास ऑफ विद रेस्पेक्ट टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटेड टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. Will determine mass of electron relative to mass of hydrogen atom. Now the third important thing is we have to determine mass of electron relative to, with respect to, relative to mass of hydrogen atom. मास ऑफ हाइड्रोजन. तो पहले मुझे डायरेक्टली बोलो, अगर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम की मास को रिलेट करेंगे, हाउ मच टाइम्स इलेक्ट्रॉन इज हेवियर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो कोई बच्चा मुझे बोलो डायरेक्टली, तब तक मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालते. तो देखो इस चीज को हम कैसे निकालेंगे. वी नो दैट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम it's equal to 1.008 AMU, isn't it? Atomic mass unit में इसका perfect value जो है that's 1.008 AMU. Now you know that 1 AMU किसके बराबर होता है? 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to the power minus 24 grams. ये बात हमने मोल कंसेप्ट में क्लियर की है. इसको मल्टीप्लाई करो, 1.008 multiplied by value of this AMU, that's 1.66 into 10 raised to the power minus 24. This will come out to be mass in gram. तो अगर इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, this will come out to be 1.673 into 10 raised to the power minus 24 gram. तो अगर mass of hydrogen in grams निकालना है, it comes out to be this. Clear? Mass of hydrogen in grams comes out to be this. This is mass of hydrogen. Now हमें with respect to electron या with respect to hydrogen mass of electron निकालना. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा mass of electron या mass of hydrogen divided by mass of electron. With respect to means we have to take ratio of that mass of electron. तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे. तो मुझे बताओ what is the mass of hydrogen? 1.673 into 10 raised to the power minus 24 gram. What is the mass of electron? Which is 9.1 gram का वैल्यू लेना है. 9.1 into 10 raised to the power minus 28 grams. तो ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा. क्लियर? तो इस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे, इस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे, this comes out to be, this thing comes out to be 1837. This thing will come out to be 1837. तो मैं कहूँगा mass of hydrogen divided by mass of electron is equal to 1837. तो इस mass of electron को यहाँ ले लो. So we can write it like this, or mass of hydrogen is equal to 1837 into mass of electron. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, मैं लिखूंगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1837. यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 1/1837 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन. तो क्या मैं कहूंगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इट इज 1/1837 टाइम्स हेवियर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन.
electron is 1 by 1837 times heavier than that of hydrogen, isn't it? So we can say that an electron is 1 by 1837 times heavier than hydrogen. तो ये डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन में, मुझे लगता है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एक बार पूछा गया है. Mass of electron is 1 by 1837 times heavier than that of hydrogen. So our electron is 1 by 1837 times heavier than that of hydrogen. क्लियर हुआ कैसे रिलेट करेंगे इन दो क्वांटिटीज को? क्लियर हुआ कैसे रिलेट करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ हाइड्रोजन? तो इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा. I'll take a space over here. यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा. Mass of electron is equal to 1 by 1837. What is the mass of hydrogen? It is in AMU. It is 1.008 divided by 1837. So in AMU, this value will come out to be 0.0000549 AMU. अगर AMU में पूछेगा mass of electron 0.000549 times mass of hydrogen. किसको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? मुझे बता. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज वेरी इंपॉर्टेंट. तो नेक्स्ट जो हमने देखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को याद रखना है, E/m वैल्यू को याद रखना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को याद रखना है. तो हमने कंडीशंस अप्लाई की, उन कंडीशंस को याद रखना है. मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज मास ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन कब इमेजिनरी बनता है, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन कब इन्फिनिटी होता है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. अगर हम सम अप करेंगे इस टॉपिक को, आप ये चीज आपने कॉपी की. हैव यू कॉपीड दिस थिंग? हैव यू कॉपीड दिस पेज? वेरी गुड. क्लियर हुआ ये? पहले मुझे बोलो ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड. तो आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थे, दैट्स प्रॉपर्टीज, इनको आप याद रखना. प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज जो आपको याद रखना है, जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी. प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है. पहले लिखो E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन याद रखना है. उसके बाद चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन याद रखना है. उसके बाद मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन याद रखना है. मास में आपका आएगा रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको दो कंडीशंस आएंगी. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. In this case, your mass becomes infinity, and in this case, your mass becomes imaginary. एक और कंडीशन जो इंपॉर्टेंट थी हमने डिस्कस की मास में विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 by 1837 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन. तो इन AMU दिस कम्स आउट टू बी 0.0000549 AMU. ये था हमारा आज का टॉपिक. सब बच्चे बोलो टॉपिक क्लियर हो गया? वेरी गुड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है, he can ask me in WhatsApp group as well. He can ask me over here as well. तो एक्चुअली मैंने इसके क्वेश्चन बैंक आइस का लाया है, तो 2-4 दिन के बाद हम उस क्वेश्चन बैंक को भी फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर विल सॉल्व दैट क्वेश्चन बैंक. So thanks for being with me and thanks for watching this lecture. I'm going to stop this topic over here.